Welcome to the next lecture of health and disease. The next side heading, the today's side heading is AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. This word is not new for you. Often you have listened this name. AIDS, the full name is Acquired Immunodeficiency Syndrome. Let me elaborate this this entire name. As we know, in this chapter only we have studied about the immune system. We have immunity present in our body. We have immune system in various organs and various cells are responsible for functioning in the immune system. तो बच्चों हमारी बॉडी में immunity present होती है, immune system present होता है. As you know, immune system is broadly classified into two categories, that is innate immunity and acquired immunity. Innate immunity, just for reminding, innate immunity is present right from birth, and acquired immunity is a type of immunity which we develops after the birth when our body comes in contact with the several pathogen, or when we take the vaccines. Our immunity which develops after the birth is called as acquired immunity. So what happened in the case of AIDS? Why it is called as acquired immunodeficiency syndrome? So it is basically what happened, it is the deficiency syndrome. Syndrome is the symptoms or the problem which our body face. So it is a deficiency syndrome, and the deficiency is of acquired immunity. You know, the immunity which develops after the birth is called as acquired immunity. तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफिशियंसी होती है और उसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. नाउ रिमेंबर, this disease is caused by a specific type of pathogen, a specific type of virus called as HIV. You have listened this name, HIV. Full name is human immunodeficiency virus. So human immunodeficiency virus basically is responsible for causing this disease, responsible for causing this problem called as acquired immunodeficiency syndrome. Now it is a fatal illness. It is a fatal illness. ये जानलेवा प्रॉब्लम है, ये जानलेवा समस्या है. ये ऐसी प्रॉब्लम है कि यूजुअली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है वो रिकवर नहीं कर सकता. आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है. तो इट इज अ फेटल इलनेस, इट इज अ फेटल प्रॉब्लम caused by virus, the group of virus called as retrovirus. So it is caused by a group of virus called as retrovirus. retrovirus किसको कहते हैं? ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो. ऐसा वायरस जिसका देखो, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है. तो ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो और जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एंजाइम प्रेजेंट हो, ऐसे वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं. तो this disease, this fatal disease I am talking about, the AIDS, it is caused by a group of virus, it is caused by retrovirus. वो retrovirus में genetic material is present in the form of single stranded RNA. उसका genetic material single stranded RNA है, and such virus, retrovirus with single stranded RNA, known as human immunodeficiency virus, that is HIV. So in short, HIV is responsible for creating AIDS. HIV is responsible for causing AIDS. HIV is a retrovirus with single-stranded RNA. It weakens the body immune system. This virus HIV is responsible for weakening of the immune system. जिसके अंदर ये पैथोजन एंटर होगा, उसके इम्यून सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करेगा, इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, और ये इम्यून सिस्टम के वीकनेस के वजह से इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम क्रिएट होता है. Now what happens if HIV enters in the body? It affects the immune system. It makes the immune system weak. So individual becomes susceptible for these several other diseases. अब उसके अंदर दूसरे डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उसका डिफेंस मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो चुका है. तो वो डिजीज जो जनरली हमको होती है, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हम उससे कम आउट कर लेते हैं, हम उससे बाहर आ जाते हैं. वी हैव वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम. लेकिन इम्यून सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो गया, एचआईवी ने इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया,
तो इंडिविजुअल जिसके अंदर ये पैथोजन एंटर हुआ है वो इंडिविजुअल दूसरी डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा। तो लिविंग विक्टिम वल्नरेबल टू लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वो विक्टिम को अलग अलग इन्फेक्शन के लिए निमंत्रण देते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन के लिए इनवाइट करते हैं। इसके वजह से उसके अंदर अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। रिमेंबर, यूजुअली जो एड्स पेशेंट होते हैं उनकी डेथ एचआईवी की वजह से नहीं होती है, उनकी डेथ अलग अलग इन्फेक्शन की वजह से होती है। यूजुअली जो एचआईवी पेशेंट हैं, जो एड्स के पेशेंट हैं, उनकी डेथ अलग अलग इन्फेक्शन लाइक उनकी डेथ निमोनिया में हो जाती है, उनकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस से होती है, उनकी डेथ कापोसी सार्कोमा से होती है। सो दीज आर द 3 कॉमन रीजंस। और उसके अलावा कोई भी इंफेक्शन उनके अंदर हुआ तो जल्दी हील नहीं होगा, जल्दी बॉडी उनकी रिकवर नहीं करेगी, बिकॉज दे डू नॉट हैव द इम्यून सिस्टम, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम। इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स के चांसेस होंगे। सीवियर डिजीज में, बहुत सी अलग अलग डिजीज में नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चांसेस हैं। इवन अनयूजुअल मैलिग्नेंसी अभी हमने पढ़ा था, मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमने पढ़ा था द टाइप ऑफ ट्यूमर कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसमें मैलिग्नेंसी होने के चांसेस हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्यूमर या कैंसर होने के चांसेस हैं। कापोसी सार्कोमा जो मैंने बताया था, इट इज अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर का टाइप है वो। एड्स, it is a modern pandemic disease, you can say it is modern pandemic disease। पूरे वर्ल्ड में इसके केस मिल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में इसके पेशेंट प्रेजेंट हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज है और बहुत पुरानी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पहले से लोग इसको नहीं जानते थे। अफेक्टिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में देखे जाते हैं, दोनों में इसके केसेस मोरलेस इक्वल मिलते हैं। तो इन शॉर्ट इट अफेक्ट्स दी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पे इसके प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन यूएसए इन 1981। हो सकता है उसके पहले से प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन जो फर्स्ट केस नोट किया गया वो 1981 में यूएसए में था। इंडिया में जो फर्स्ट केस मिला था वो 1986 में तमिलनाडु में ये केस मिला था। सो दिस ऑल अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, आगे की स्लाइड्स में मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूं। नाउ दिस फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. As we know, HIV is a type of retrovirus having genetic material present in the form of RNA. The size of the virus is approximately 100 to 140 nanometer in diameter. See, the diameter is shown, 100 to 140 nanometer is the diameter of virus. It is more or less spherical in shape. The virus particle shows centrally located two single-stranded RNA molecule. You can see two S-shaped RNA molecules are shown. So it has two centrally placed single-stranded RNA molecule and also having the enzyme called as reverse transcriptase. Reverse transcriptase enzyme is necessary for retrovirus for reverse transcription so that RNA will be converted into DNA, and for further application this enzyme is required to convert RNA into DNA. It is just like doing reverse of transcription. Apart from this, this entire virus is covered by two layers of protein. The outer layer of matrix protein, that is P17, while the inner layer is capsid protein, that is P24. These are the two proteins, means entire virus is covered by two protective coverings, two protein layer. The outer one is matrix protein and the inner one is capsid protein. Outer the matrix protein layer, there is an additional layer of lipid. You can see in this diagram the additional layer of lipid is present, and on this lipid layer glycoprotein molecules are embedded. Glycoproteins are impregnated in the lipid layer. The glycoprotein, that is GP120 and GP41 as shown in the figure. So
This is all about the HIV virus. Now the next thing is, this virus replicate in T4 lymphocyte. You can see the virus enters in T4 lymphocytes. It can remain in a latent state in the lymphocyte cell. It remain in the lymphocyte cell for a considerable time. The virus has unique ability to destroy human T4 lymphocytes. So this virus basically destroy T4 lymphocyte. It destroy the T4 cell, which is a type of T lymphocyte, which is a type of lymphocyte present in the blood cell. HIV is found in a greater concentration. Usually HIV, this virus, no doubt they target the lymphocyte. So obviously they are present in blood. Apart from blood, the sufficient quantity of HIV virus can be seen in semen, that is a male genital secretion, and cerebrospinal fluid, that is CSF, the fluid present within the brain, within the spinal cord, and also present outside the brain and outside the spinal cord, in between the meninges. And to a lesser extent, this HIV virus can also be found in tears, milk, urine, saliva, cervical and vaginal secretion of female. Now usually the transmission is done where it is in the greater concentration. If the content is less, the pathogen is less, the chances of contamination, the chances of transmission is comparatively less. So this whole thing about the HIV virus. Now starting with the next slide heading in AIDS, that is mode of transmission. How the virus transmit from one person to other person. How the virus transmit from infected person to normal healthy person. Few basic points are given here. The first point is unsafe sexual contact. By means of unsafe sexual contact, the disease may transmit from male to female or vice versa, that is from female to male, that is from infected male to normal female, or normal female, infected female to normal male. This sexual activity includes oral sex, vaginal and anal sex. Any type of sexual activity is responsible for transmitting the disease. Remember, among all the HIV positive cases, around 85% transmission is done by this method only. That is, this is a dominating method for transmission of disease, unsafe sexual contact. The second reason is blood, generally by blood transfusion, via blood transfusion or needle sharing. Blood transfusion in the sense, if a person donate blood and the donor is positive, so the person who receives the blood, that is recipient, ultimately get the virus through the blood. So blood transfusion is a second reason. Nowadays that is why blood is screened properly before any type of donation, before any type of transfusion. Even needle sharing, generally needle or surgical utensils, surgical instruments which is used for surgery, if it is given to the, if it is used by HIV positive person and the same needle or same surgical instrument is used for the normal healthy person, so by means of contamination the virus may transmit from infected person to healthy person. That is why nowadays it is mandatory for the doctors to use disposable needles. The third point, from mother to child, transplacental. Transplacental word we have listened earlier in this chapter, that is pathogen transmit from mother blood to the fetal blood by crossing the barrier of placenta. If the HIV positive female is pregnant, so there is a chance कि उसके फीटस के अंदर भी डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाए, बिकॉज पैथोजन ट्रांसमिट करेगा, ये क्रॉस कर लेगा प्लासेंटा के बैरियर को. अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन ट्रांसमिट द वायरस टू हर फीटस थ्रू देयर शेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन. द ब्लड सर्कुलेशन, although placenta is a barrier, but certain things can cross the barrier of placenta. तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होगा जो माँ की बॉडी से एंटर होगा. The next point, or a nursing mother can transmit it to her baby from her breast milk. तो एक नर्सिंग फीमेल, नर्सिंग लेडी, नर्सिंग मदर अगर HIV पॉजिटिव है
तो उसके मिल्क में भी HIV प्रेजेंट होगा, उसके मिल्क में वायरस प्रेजेंट होगा, और मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू वायरस उसकी बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. Some other methods are also given in the next paragraph. Other methods of spreading of the virus are rare. ऊपर जो 3 पॉइंट थे ये dominating reason थे. Other methods are rare but still there is a chance of transmission, which includes accidental needle injury, artificial insemination with infected donated semen, and transplantation with infected organ. That is, if the person donate the semen is a male genital fluid and the person is HIV positive, तो semen के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है. कोई भी ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट किया जाए और वो ऑर्गन इन्फेक्टेड पर्सन का है, HIV पॉजिटिव पर्सन का है, तो रिसिपिएंट को डिजीज़ हो सकती है. निडल से डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया आपसे. द नेक्स्ट पॉइंट इज़, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़, एड्स वायरस हैज़ बीन फाउंड इन यूरिन, टीयर, saliva, breast milk, vaginal secretion, but it seems not to be transmitted by these fluid unless it get into injuries. तो ये जो फ्लूइड्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं, लाइक यूरिन, टीयर, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड वजाइनल सिक्रेशन, इसमें पैथोजन तो प्रेजेंट होता है, मगर इससे ट्रांसमिशन के चांसेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं, अनलेस वो फ्लूइड हमारी बॉडी के किसी इंजर्ड पार्ट में कांटेक्ट में ना आए. अगर बॉडी के किसी इंजर्ड पार्ट के कांटेक्ट में आएगी ऐसी फ्लूइड, तो पैथोजन डायरेक्टली एंटर्स इन द ब्लड और ट्रांसमिशन का चांस होगा. अदरवाइज इस फ्लूइड से ट्रांसमिशन होने के चांसेस लेस हैं या नेग्लिजिबल हैं. ओके, नाउ एड्स, कुछ ऐसे भी मेथड हैं जिससे एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है. सी इन द राइट साइड डायग्राम, सम ऑफ द डायग्राम शोज, सम ऑफ द फिगर शोज कि डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट नहीं हो सकती है. कैजुअल कॉन्टैक्ट सच एज हगिंग, इंसेक्ट बाइट दैट इज़ मॉस्किटो बाइट से, हग करने से, मॉस्किटो बाइट से, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, टचिंग आइटम प्रीवियसली टच बाई पर्सन इन्फेक्टेड विद द वायरस, हैंडशेक करने से, क्लोथ शेयरिंग करने से, स्विमिंग पूल शेयर करने से, ये सब मेथड से डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी. दैट मीन्स अगर हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, तो उससे सोशल डिस्टेंस बनाना इज़ नॉट नेसेसरी. जस्ट वी हैव टू टेक केयर कि बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिट ना हो. सो दिस ऑल अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नाउ द नेक्स्ट साइड हेडिंग इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स. द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज सिम्टम्स. Clinical manifestation means symptoms of AIDS have been classified into 4 broad categories. 4 categories are given here: initial infection, asymptomatic carrier stage, AIDS related complex that is ARC, and the AIDS. These are the 4 stages. एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. The first stage given in your book is initial infection. With the virus and formation of antibodies, usually 2 to 8 weeks after the initial infection. Once the pathogen enters in our body, after 2 to 8 weeks, virus start forming antibody. This is the initial part. Our immune system react for HIV pathogen. The second one is asymptomatic carrier stage. Remember, this stage varies from individual to individual and it depends upon the immunity of the individual. Asymptomatic carrier stage, that means individual is not showing any symptom but still they are carrier, means they carry HIV in their body but they are not showing any symptom. Remember, this stage is comparatively more dangerous because in this stage generally patient doesn't know, individual doesn't know कि he or she is suffering from HIV, he or she has HIV pathogen in the body, और उनके वजह से कुछ और लोगों को सोसाइटी में डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट नोइंग कि दे हैव HIV इन देयर ब्लड, दे हैव HIV इन देयर बॉडी. व्हेन दे कम इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, व्हेन दे कम इन एनी अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजीज़, दूसरे इंडिविजुअल में डिजीज़ ट्रांसमिट होगी. ऑल्दो दे आर कैरियर, दे आर नॉट शोइंग एनी सिम्टम बट दे आर क्वाइट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. Now, asymptomatic carrier stage in which no sign of disease are seen. Incubation period
incubation period क्या है? Once the pathogen enters in the body, the time taken by the pathogen to show the symptoms means इतने ड्यूरेशन तक वो इंडिविजुअल में कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता है. इंक्यूबेशन पीरियड इन मेडिकल टर्म इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज विंडो पीरियड. तो विंडो पीरियड फॉर एड्स इज 6 months, मिनिमम 6 months and maximum it may go up to 10 years. तो 6 months to 10 years, 10 year is too much, means when the pathogen enters in the body, हो सकता है 10 साल तक उसको कोई सिम्टम्स ना आए. 10 साल के ड्यूरेशन में उसने डिजीज स्प्रेड किया होगा, दैट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी. उसके बाद एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज ARC with one or more of the following clinical sign. इसमें clinical symptoms develop होंगे. In the previous stage, asymptomatic stage में कोई भी symptom नहीं था, यहाँ पे symptoms develop होंगे. क्या क्या symptoms है वो यहाँ पर mention किया है. Recurrent fever for longer than 1 month, बार बार उसको 1 महीने तक फीवर आएगा. लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक फीवर हो सकता है. Fatigue, unexplained diarrhea, unnecessary उसको लूज मोशन होगा. Night sweats, हॉर्सनेस इन द ब्रीथ, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, एक अजीब टाइप का साउंड प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेशन के टाइम पे. लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट, उसका बॉडी वेट 10% तक रिड्यूस होगा. इन सम क्रिटिकल केसेस बॉडी वेट रिड्यूस ड्रास्टिकली. सम टाइम बॉडी वेट मे रिड्यूस अप टू 50% इन सम केसेस, इन सम सीवियर केसेस और एक्सट्रीम केसेस. तो मिनिमम 10% बॉडी वेट लॉस होगा. इट मे गो अप टू मच हायर परसेंट. द फोर्थ सिम्टम विच इज़ गिवन इन योर बुक एज एड्स, इट इज़ द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन. एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC के बाद का स्टेज है, जब पेशेंट एकदम एंड स्टेज में पहुंच जाता है, सीवियर कंडीशन, सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. उसको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होंगे बिकॉज इम्यून सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है. उसके अंदर अलग अलग इन्फेक्शंस होंगे. इन्फेक्शन में जनरली निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड कापोसी सार्कोमा. सो दीज आर द इन्फेक्शन विच पर्सन मे डेवलप due to deficiency of immunity, due to deficiency of immune system. One more thing I would like to elaborate here, that is once the pathogen enter in the body, once HIV enters in the body, उसको जब तक asymptomatic carrier stage में है, मतलब जब तक उसके अंदर symptoms develop नहीं होते हैं, तब तक उसको हम AIDS patient नहीं बोलते हैं. उसको हम HIV पॉजिटिव बोल सकते हैं, बट वो एड्स पेशेंट नहीं है. जब इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होगा, जब उसमें सिम्टम्स डेवलप होंगे, तब उसके लिए एड्स वर्ड यूज़ किया जाएगा, बिकॉज एड्स में सिम्टम का डेवलप होना इज़ नेसेसरी. सो दिस ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. नाउ द नेक्स्ट साइड हेडिंग गिवन इन योर बुक इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स. नाउ हाउ डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, क्या क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं. देखो अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने पढ़ा है, राइट. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कैसे डिजीज़ ट्रांसमिट होती है. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होती है, निडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसमिट होती है. तो जो भी मेथड आपने वहाँ पर पढ़ा है, उसी का हमें प्रिवेंशन यहाँ पे मेंशन करना है कि वो सारी चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंशन और क्योर के केयरफुली उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एड्स में AIDS has no cure, it has no permanent cure, it means it cannot be cured properly, hence prevention is better choice. Always prevention is better than cure. The following step helps in preventing this dreadful disease. First point, people, particularly those in high risk group, should be educated about HIV transmission. The first thing, the very important thing is knowledge, that is education. ख़ासकर देखो अभी एजुकेशन तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, मगर जो हाई रिस्क पीपल हैं, जिनमें ट्रांसमिशन के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, उनको HIV ट्रांसमिशन के बारे में नॉलेज देना, डिज़ीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है उसके बारे में बताना, कैसे ट्रांसमिशन से बचा जा सकता है, कैसे ट्रांसमिशन को अवॉइड किया जा सकता है, उसके बारे में नॉलेज देना. अभी ये नॉलेज यूजुअली स्कूल से लेके, हायर क्लासेस से लेके, कॉलेज से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनको तो ये नॉलेज मिलता है,
लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है और हाई रिस्क एरिया में या हाई रिस्क प्रोफेशंस में है जहाँ पे डिजीज़ ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, तो उनके लिए नॉलेज का होना ज़रूरी है, सो दैट एटलीस्ट दे प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, सो दैट एटलीस्ट दे टेक सम प्रिवेंटिव मेजर कि डिजीज़ स्प्रेड ना हो. Second point, disposable needle and syringes should be used and disposed of properly and immediately. As you know very well, nowadays doctors are using needle and syringe which is disposable. It is used only once. और यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड किया जाए, जो मेथड है उस मेथड से डिस्कार्ड किया जाए, सो दैट उस पर लगा हुआ ब्लड का ड्रॉपलेट अगर वो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल का है तो उससे किसी को ट्रांसमिशन ना हो. पहले, आज से कई साल पहले तक के जो डॉक्टर्स होते थे वो एक ही निडल अलग अलग पेशेंट पे यूज़ करते थे, एक ही निडल को वॉश करके या स्टेरिलाइज करके अलग अलग पेशेंट पे यूज़ करते थे. तो इससे क्या था, इससे ट्रांसमिशन के चांसेस होते थे. सो अप टू अ सर्टेन लेवल आज से पहले जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी डिजीज़ के स्प्रेड करने में कंट्रीब्यूट किया है, because of improper care, or you can say because of using same needle and surgical instrument again and again. So this is the second point, we have to use disposable needle and syringes. Third point, sexual habit should be changed immediately. If the mode of transmission is sexual, तो कैसे sexual prevention लिया जा सकता है, कैसे sexual habit को change किया जा सकता है जिससे disease spread ना हो, ये यहाँ पे mention किया है. Next point, high risk group should refrain from donating blood. जो ग्रुप ऐसा है जिसमें HIV होने के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको ब्लड डोनेशन के लिए मना किया जाए, उनका ब्लड एज अ डोनर्स ब्लड एक्सेप्ट ना किया जाए, उनके ब्लड को किसी को डोनेट ना किया जाए, बिकॉज इफ़ दे आर एट हाई रिस्क ग्रुप, अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में है तो उसके वजह से हो सकता है कि उसके अंदर पैथोजन प्रेजेंट हो और वो पैथोजन के थ्रू डिजीज़ स्प्रेड हो जाए. फिफ्थ पॉइंट गिवन इन योर बुक इज़ टूथब्रश, रेजर्स, अदर आर्टिकल्स दैट कैन बिकम कंटामिनेटेड विद ब्लड शुड नॉट बी शेयर्ड. अभी ये छोटे छोटे मटेरियल्स जो यहाँ पे मेंशन किए, जैसे रेजर्स है, टूथब्रश है, या और भी कोई ऐसी चीज़ है जो यूज़ करने पे ब्लड से कांटेक्ट में आ सकते हैं. जैसे रेज़र शेविंग करते टाइम अगर उसके ब्लेड के टिप पे एक माइक्रो ड्रॉपलेट ब्लड भी लग गया और वो दूसरे इंसान के ब्लड के साथ कंटामिनेट हो गया, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिजीज़. टूथब्रश कई बार गम से ब्लीडिंग होती है तो उस पर अगर पैथोजन लग गया तो सच थिंग शुड नॉट बी शेयर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिफोर रिसीविंग ब्लड एंश्योर दैट इट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर नॉट कंटेनिंग HIV इन्फेक्शन. अगर कोई इंडिविजुअल ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसका ब्लड कलेक्ट करने के बाद किसी भी रिसिपिएंट को ब्लड देने से पहले ये ब्लड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ब्लड की स्क्रीनिंग करे, उसके अंदर HIV पॉजिटिव तो नहीं है, नॉट ओनली HIV पॉजिटिव, एनी डिजीज़ विच कैन ट्रांसमिट थ्रू ब्लड, तो वो डिज़ीज़ की स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है, उस ब्लड को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना कहीं वो ब्लड HIV पॉजिटिव तो नहीं. अगर वो ब्लड HIV पॉजिटिव है तो वो ब्लड हम किसी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को डोनेट नहीं कर सकते. सो दिस ऑल थिंग इज़ अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स. Now the next point is routine screening must be done. It is also a type of prevention. Routine screening must be done for blood donors. जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके ब्लड की स्क्रीनिंग करना, उनके ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करना कहीं उसमें HIV पॉजिटिव तो नहीं. ऑर्गन डोनर्स जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, कॉर्निया है, तो किसी भी तरह के ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन से पहले जो डोनर है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है. डोनर ऑफ सीमेन एंड ग्रोथ हार्मोन, many people they donate semen and even growth hormone can also be transferred from one person to other person. तो सीमेन और ग्रोथ हार्मोन की स्क्रीनिंग करना HIV के लिए, उसमें HIV पॉजिटिव तो नहीं है. पेशेंट अंडरगोइंग hemodialysis, you know hemodialysis, it is a type of filtration method जिसमें if the urine is not working properly तो it is just like artificial kidney. तो पेशेंट अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस
उनकी भी रेगुलर स्क्रीनिंग करना HIV के लिए ज़रूरी है। फीमेल इन द हाई रिस्क ग्रुप हु आर प्रेग्नेंट और कंटेम्पलेटिंग प्रेगनेंसी, तो वो फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं या जिनमें प्रेगनेंसी के चांसेस हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करना। नाउअडेज इट इज़ कंपलसरी कि कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उसकी HIV टेस्टिंग की जाती है, कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं, बिकॉज अगर वो HIV पॉजिटिव होगी तो उसका जो डेवलपिंग फीटस होगा उसमें इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होंगे, बिकॉज पैथोजन में क्रॉस द बैरियर ऑफ प्लासेंटा। सो दिस ऑल अबाउट द रूटीन स्क्रीनिंग. Now the next point is laboratory diagnosis of AIDS. How the AIDS is diagnosed. Remember, HIV diagnosis is done generally in two steps. The first part is a test is used to detect the HIV antibodies. If the person is HIV positive, उसके इम्यून सिस्टम ने HIV के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया होगा, उसके ब्लड में, उसके सीरम में, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में HIV के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे. सो डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज़ ऑफ HIV इन द सीरम, in other word you can say if HIV antibody is found in the serum, that means उस इंडिविजुअल के अंदर HIV यानी पैथोजन यानी एंटीजन प्रेजेंट है, तभी तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हुआ. तो एंटीबॉडीज़ को स्क्रीन करना चाहिए. कैसे स्क्रीन करते हैं? उसके स्क्रीनिंग के लिए अलाइजा टेस्ट यूज़ होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. दिस अलाइजा टेस्ट इज़ डन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV एंटीबॉडी इन द सीरम. अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद कंफर्म करने के लिए सेकेंडरी टेस्ट करना पड़ता है. अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो नो नीड टू गो फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट. द सेकेंड कन्फर्मेटरी टेस्ट इज़ यूज टू वीड आउट एनी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट. कभी कभी अलाइजा से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट में कंफर्म होगा. द कन्फर्मेटरी टेस्ट यूजुअली अ वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पे बेस्ड है ये टेस्ट. इट इज़ हाईली स्पेसिफिक टेस्ट. इट इज़ बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ और वायरल कोर प्रोटीन एंड एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन. अगर वो वायरस किसी की बॉडी में एंटर हुआ है तो वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा. वायरस की बॉडी की जो प्रोटीन है, उसकी बॉडी पे जो प्रोटीन की कवरिंग है, उस प्रोटीन की कवरिंग को डिटेक्ट किया जाएगा, या उसके ऊपर जो लिपिड की लेयर थी उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन के नॉब्स लगे थे उसके एनवेलप पे, वो ग्लाइकोप्रोटीन के नॉब्स को डिटेक्ट किया जाएगा. तो ग्लाइकोप्रोटीन का मिलना या वायरल कोर प्रोटीन का मिलना या HIV की एंटीबॉडी का मिलना इज़ द इंडिकेशन दैट द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम HIV. दिस इज़ डन by the method, this is done by the specific method, that is by means of Western blotting technique. It is a confirmatory test and this test is highly specific. Now treatment of AIDS. As far as treatment of AIDS are concerned, AIDS has no cure. As said earlier, there is no particular fixed or specific type of treatment is available for the AIDS. However, certain drugs are given and certain drugs are little bit effective. Certain medicines called ART, antiretroviral drug, इसको HAART भी बोलते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी कहते हैं, और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ART कहते हैं, कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वायरल लोड एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ HIV पेशेंट. ये वायरल लोड मतलब बॉडी में जो वायरस की क्वांटिटी है, वायरस का जो अमाउंट बॉडी में है उसको रिड्यूस करेगा, और उसके रिडक्शन से क्या होगा कि वो इंडिविजुअल जो HIV पॉजिटिव है, जो एड्स पेशेंट है, उसकी लाइफ स्पेन कुछ इंक्रीज़ हो जाएगी. वो पूरी तरह से क्योर तो नहीं हो सकता, पूरी तरह से ट्रीट तो नहीं हो सकता, मगर उसकी लाइफ स्पेन कुछ हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी. नो एग्जाम्पल ऑफ सच ड्रग्स दैट इज़ ART, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन. उसमें फर्स्ट मेंशन किया है TDF, दैट इज़ टीनोफोविर. द सेकेंड वन इज़ EFV, दैट इज़ एफावायरेंस. द थर्ड वन इज़ lemivudin, that is 3TC, etc. So these are the treatments available for AIDS, treatment available for the HIV individual, HIV positive individual. यहाँ पे AIDS टॉपिक कंप्लीट होता है.